Welcome to online classes organized by Sagar Education Academy. First of all, good morning to all of you students. Today is our first lecture and our topic will be tense. We will start from the definition of the tense. Tense means different forms of a verb show different time and aspects. Means जो tense की जो different forms होती है verb की वो डिफरेंट टाइम एंड एस्पेक्ट्स को शो करती है. फॉर एग्जांपल टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम. एंड एस्पेक्ट मींस टाइम कैसे वर्ब की कैसे फॉर्म से कैसे टाइम को शो करती है. फॉर एग्जांपल इज ए मार्क शोज प्रेजेंट टाइम, was got shows past time, will shall shows future time. Okay, then we talk about aspects: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. These are the aspects. Continuous, if we use v1 plus ing, that shows continuous aspect. If we use v3, that shows perfect aspects. So आपने ये देखा कि टेंस जो होता है उनकी जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है वो डिफरेंट टाइम को और एस्पेक्ट्स को शो करती है. तो पूरा खेल यहाँ वर्ब का है. Now we talk about the parts of the tense. There are three types of tense, you know. First of all, present tense. Second is past tense, and third is future tense. Each tense has four part. Each tense has four part. मतलब present tense के भी four part होते हैं, past tense के भी four part होते हैं, और future tense के four part होते हैं. First of all, we will talk about present tense. The first part of present tense is present indefinite. Second is present continuous, third is present perfect, and fourth is present perfect continuous. These are the four parts of present tense. Okay, if I rub present from here, if I rub present from here, and if I write past, and past, then they will become the parts of past tense. और इस past को हटाकर मैं यहाँ future लगा देता हूँ तो ये future tense के part बन जाते हैं. ये future tense के part बन जाते हैं. तो it is very easy to learn, easy to capture. You can understand it very well. So these are the parts of future tense. So आपने ये देखा कि प्रेजेंट टेंस के फोर पार्ट, पास्ट टेंस के फोर पार्ट एंड फ्यूचर टेंस के फोर पार्ट्स को मिला के टोटल ये 12 टेंसेस हो जाते हैं. बट डोंट वरी अबाउट इट, वी विल लर्न इट वेरी इजीली. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. सो फर्स्ट पार्ट वाज सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. यहाँ से इनको रफ कर देते हैं. और फर्स्ट टेंस इज present indefinite tense. First is present indefinite tense. What is the sentence structure? How can we make the sentence of present indefinite tense? First of all, I will write the sentence structure here. You will see subject. We have to use subject plus v1 and then object. To make the sentence of present indefinite tense, we can use subject, v1 and object. Now, what is subject? You must know what is subject. Subject is the doer of the action or the thing or the person on which something is told in a sentence, that is called subject. मतलब काम को करने वाला. सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या सेंटेंस में जो एक्शन करता है, जो काम करता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. Now what is verb? Verb is called action. जो सेंटेंस के अंदर एक्शन होता है, जो काम होता है, उसको हम verb कहते हैं. And what is object? The work is being done by the subject through action, that is called object. जो काम subject करता है through action, that is called object. So you have understood what is subject, what is verb, and what is object. We can take an example here. I am writing that, for example, you write a novel. You write a novel.
because you is doing the work of writing. And what is verb? Verb is write, because क्या एक्शन हो रहा है इसके अंदर? इसमें एक्शन राइट होने का हो रहा है, मतलब क्या काम हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है. एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ए नॉवल. यू राइट ए नॉवल. द वर्क विच इज बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट थ्रू एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट काम करता है एक्शन के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो यहाँ यू ने क्या लिखा? नॉवल लिखा, इसलिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. इफ योर सब्जेक्ट बिलोंग्स टू थर्ड पर्सन, if your subject belongs to third person, then the verb will take s and es with it. This is very important. Look at it. If your subject belongs to third person, then verb will take s and es. s और es, मतलब जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन से बिलोंग करेगा तो आपको वर्ब के साथ में s और es का यूज करना है. Now you must know what are the persons. Look at here. There are three persons in English. You can see here: first person, second person, and third person. The parts of first person: I, my, me. We, are, us. These are the first persons. You, your, you. These are the second persons. He, his, him, she, her, it, they, their, them. These are the third person. Some are singular in nature and some are plural in nature. In first person, second person, third person, कुछ तो यहाँ सिंगुलर फॉर्म में है, कुछ यहाँ प्लूरल फॉर्म में है. मैं आपको प्लूरल फॉर्म के बारे में बता देता हूँ. प्लूरल फॉर्म कौन कौन सी होती है? I, we, you and they. These are the plural form of person. मतलब I प्लूरल होता है, we भी प्लूरल, you and they प्लूरल होता है. इसके अलावा he, she, it ये है, ये सिंगुलर होगा. ओके. I is singular in nature but it take plural verb. I सिंगुलर होता है नेचर में but it takes plural verb. बट एक ही जगह ऐसा होता है जब ये अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है, वैसे ही प्लूरल वर्ब लेता है. बट एक टाइम ऐसा होता है जब ये अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेगा, वो होगा पास्ट टेंस, जब अपने साथ में ये वॉज लेगा. ओके. तो दीज आर द प्लूरल एंड दीज आर द सिंगुलर. सिंगुलर में लिख देता हूं आपके लिए ही, शी एंड इट. दीज आर द सिंगुलर. ओके. One thing is very most, that is I, we, you, he, she, it, they. These are in the nominative case. These can be only the subject of the sentence. आप कोई सा भी सेंटेंस बना रहे हैं उसका केवल ही सब्जेक्ट बन सकते हैं. You cannot make them object of any sentence. And you are looking here, these can be used in objective case only, means these can only be the object of a sentence. ये कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकते, ये कभी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते. and these are the possessives. Noun can be used with them and they can make both subject and object. For example, my father, my pen, your bag, his notebook. अब ये आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह यूज ले सकते हैं बिकॉज इसके साथ में नाउन ऐड है, बट ये सब्जेक्ट ही बन सकते हैं किसी भी सेंटेंस का, ये किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही बन सकते हैं. हम ऐसे नहीं बोल सकते मी एम गोइंग टू जयपुर, ऐसा नहीं हो सकता. मी एम गोइंग टू जयपुर, them are playing cricket, this is wrong. So आप हमेशा इनको सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं and these can be used at the objective. Okay, so these are the persons. I am talking about third person. If your subject belongs to third person singular, third person must be singular, then you will use
V1 S और ES। तो थर्ड पर्सन कौन कौन से मैंने बताया आपको सिंगुलर फॉर्म में है, थर्ड पर्सन मैंने बताया आपको सिंगुलर फॉर्म में है ही शी इट, एंड इसकी जगह नेम भी हो सकता है, किसी गर्ल या बॉय का नेम भी हम राइट कर सकते हैं, ही शी और नेम एंड इट, ये थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी होगा आपका सब्जेक्ट तो आपको V1 और S और ES उसमें यूज करना है whenever you are making the sentence of simple present tense only और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, ये आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करना है, तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाना पड़ेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू विल यूज एस और ईएस इन वर्ब। ओके, आई एम राइटिंग हियर, लुक एट इट, व्हेन the main verb ending with o, फॉर एग्जांपल देखिए इधर गो है, गो अगर आपकी कोई भी मेन वर्ब है वो ओ से एंड हो रही है तो आपको इसमें ईएस लगाना है, मतलब ये ईएस के रूल से सारे, कब आपको ईएस लगाना है, इधर ध्यान से देखेंगे आप, ये ईएस के रूल्स हैं, ये जितने बता रहा हूँ मैं आपको, ये ईएस आपको वर्ब में कब लगाना है, जब आपकी वर्ब ओ से एंड हो रही हो, तो ये बन जाता है गोज, क्या बन जाता है, ये गोज बन जाता है। when the main verb ending with o, then you will use es with go। for example, another example we can take, do से बन जाता है does, then if the main verb ending with sh or double s, then you can for example push से बन जाएगा pushes, और pass से passes। okay, if your main verb ending with consonant plus y, अगर आपकी वर्ब में कॉन्सोनेंट के बाद में y आ रहा है, then you will use es with it। for example try का बन जाएगा, now you will convert y into I and then you will use es, तो try से tries, fly से flies। okay, you can write here, but you can see here आपको y आ रहा है लास्ट में वर्ब के, उससे पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो आपको y को कन्वर्ट करना है I के अंदर और इसके बाद में आपको es इसके अंदर ऐड करना है। तो these are the rules when you can use es, और इसके अलावा जितने भी रह गए उसमें आपको s लगाना पड़ेगा। ओके, so you can make the sentence easily। now you have understood the sentence structure of present indefinite tense। first of all subject, V1 object, यहाँ हमने एक एग्जांपल लेके भी देखा था, आपको थर्ड पर्सन जब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा तो एस और ईएस लगाना है। एस और ईएस कब लगाना है ये मैंने बता दिया, ईएस के रूल से ये, और एस इनके अलावा सभी में लगेगा। यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में आपने जाना। ओके, तब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया एक एग्जाम्पल लिया, ही plays football, he is third person, देख लीजिए आप, he is third person and that is in singular form। तो थर्ड पर्सन जब भी सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस हमको ऐड करना पड़ेगा। लुक यू कैन सी हियर ही प्लेज, यहाँ वाई था और उसके बाद में हमने एस लगाया है, क्योंकि ईएस नहीं लगेगा क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल है, इसलिए एस लगेगा यहाँ, एंड फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आपको इफ योर मेन वर्ब एंडिंग विथ vowel and are last में y, then you should not have to convert it into I and using es, you will use
प्ले है, प्ले से बाइट के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है, तो आपको ईएस का यूज नहीं करना है, आपको प्ले प्लेज एस का यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही एस से वाई से है, दिस इज नॉट कॉन्सोनेंट, दिस इज वोवल एंड यू कैन नॉट यूज आई एस, मीन्स ईएस का यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसमें एस ए वाई एस, दिस विल बी यूज्ड इन when there will be consonant, there will be vowel plus y. Okay, this is the sentence, this is the example and this is the second example. You can see यहाँ कोई एस और एस का यूज नहीं है, यहाँ एस और एस का यूज है, वो एस और एस का यूज आपको कब पढ़ना है, जब आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, मीन्स यहाँ ही शी इट या किसी का नेम होता है और वो सिंगुलर है, तो आपको एस और एस का यूज करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। वी विल स्टडी देम वेरी इजीली, वेरी केयरफुली। आपको फोकस रखना है बोर्ड पर, और कोई भी क्वेरीज है आपकी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, आपको पता होना चाहिए आपके स्कूल का यूट्यूब चैनल है सागर एजुकेशन अकेडमी गोविंदपुरा के नाम से। ओके, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन रेगुलरली। सो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आप जितना भी मैंने पढ़ा दिया इसमें देखेंगे, उसको आप घर पे बैठ के देखिए, पॉज करके देख सकते हैं। देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। थैंक यू।